about the factors affecting rate of reaction. आज हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं. लेट्स सी फैक्टर्स affecting rate of reaction. Okay, so let's discuss factor number 1. The first factor is concentration of reactant. Yes, चलिए देखते हैं. So we are talking about the concentration of reactant. How concentration of reactant affect the rate of reaction. So do you remember we studied a law of mass action in 11th standard. हमने 11th क्लास में law of mass action पढ़ा था. And law of mass action says that if we take the example of law of mass action, according to law of mass action, the rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant. So remember this thing, when the concentration of the reactant will be high, the rate of reaction will also become higher. ठीक है. तो एक्चुअली इट इज अकॉर्डिंग टू ओनली लॉ ऑफ मास एक्शन. ये लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग है विच वी स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड. but in 12th standard you will also study that in some places concentration does not affect the rate of reaction. इसका एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिलेगा इसमें. if we talk about the exception, so exception is zero order reaction. तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपन को. इसी चैप्टर में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which are independent from concentration, या whose rate is independent from concentration. जिनकी रेट जो होती है वो कंसंट्रेशन पर से अफेक्ट नहीं होती है. एक एग्जांपल भी मैं ले लेता हूं. जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं NH3, ओके, ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में अगर इसको डिकम्पोज करते हैं इट चेंजेस इनटू N2N3H2. सो एक्चुअली दिस रिएक्शन is zero order reaction. In this reaction, if you increase the concentration of ammonia, the rate of formation of N2 and H2 will not be affected by it. So that's why it is zero order reaction. So ये exception है, ध्यान रखना है. बाकी generally it happens that if we increase the concentration, rate of reaction also increases. तो वो भी increase होती है. ठीक है. So this is the first factor. And the factor number 2 is effect of temperature. What is the effect of temperature on rate of reaction? Rate of reaction पर temperature का क्या effect होगा? Let's see. इसको समझने के लिए there is a simple term called temperature coefficient. उस temperature coefficient को समझना जरूरी है. So let's see what is temperature coefficient. Temperature coefficient. Actually, temperature coefficient is nothing but the ratio of rate constant at the difference of 10 degree Celsius. 10 degree Celsius पर जो rate constant का जो रेशियो है उसे ही आप temperature coefficient कह रहे हैं. That is, यूं समझ सकते हैं आप इसको, K is the rate constant for any reaction. किसी रिएक्शन के लिए एक rate constant है. अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज होती है. एंड T डिग्री सेल्सियस प्लस हमने इसमें 10 डिग्री सेल्सियस को और ऐड कर दिया है. प्लस 10 डिग्री सेल्सियस को मैंने ऐड कर दिया है अपॉन, एंड हियर वी हैव रेट कांस्टेंट एट ओनली T डिग्री सेल्सियस. सो हियर आई कैन सी दैट कि यहां पर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस इन दीज टू रेट कांस्टेंट. दो रेट कांस्टेंट में केवल 10 डिग्री का डिफरेंस है. ये है K T डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज K T डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस. सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 डिग्री. इसको आप यूं भी ले सकते हैं. इट कैन बी रिटन एज रेट कांस्टेंट एट 35 डिग्री सेल्सियस divided by rate constant at 25 degree Celsius. So there is a difference of 10 degree only, and the ratio of these two rate constant is approx 2. इसका जो रेशियो होता है वो लगभग 2 के इक्वल होता है. ठीक है.
इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो आपको क्या वैल्यू मिलती है, के 35 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 2 इंटू के 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसे एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं हम सिंपल सा। देयर इज अ सिंपल कंक्लूजन दैट द रेट कांस्टेंट एट 35 इज डबल द रेट कांस्टेंट ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर मैंने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, व्हेन आई इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 10 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बिकम्स डबल। रेट कांस्टेंट की वैल्यू डबल हो जाती है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है उसके रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट। रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं रेट कांस्टेंट को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, के की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन इट विल इंक्रीज डेफिनेटली। तो डेफिनेटली वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये मैटर हो गया। तो अब इससे एक सिंपल सा कंक्लूजन निकला कि क्या कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं इसको समझने के लिए। लेट्स सी, इफ वी increase temperature of a reaction from 30 degrees Celsius to 90 degrees Celsius, ठीक है, what will be effect on rate of reaction। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट हमें देखना है, तो पहले हमें देखना है कि कितनी बार आपने 10 डिग्री इंक्रीज किया है। बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम 30 टू 90, हम 30 से 90 डिग्री की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, वी आर मूविंग फ्रॉम 30 टू 90 डिग्री। दैट मीन्स 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। तो एक्चुअली कैसे ले लेते हैं ना, 30 से 40, फिर 50, फिर 60, देन 70, देन 80 एंड देन 90। सो 30 से 40 10 डिग्री इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 2 टाइम्स यहाँ हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ 10 डिग्री में हो जाएगा, देन 2 टाइम्स इधर इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम्स यहाँ, देन फाइनली द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 1 2 3 4 5 6 2 टाइम्स। दैट मीन्स 2 raised to power 6 टाइम ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अपन कितने टाइम्स लिख सकते हैं, तो देखिए 2 2 जो 4, 8, 16, 32, 64। तो आप यहां लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज 64 टाइम्स। 64 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर अप टू 30 फ्रॉम 30 टू 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, so I think it is clear, it is the effect of temperature, or effect of temperature can be studied okay in term of temperature coefficient। तो ये चीज ध्यान रखिए, temperature coefficient की टर्म में अपन इसको स्टडी करते हैं। Got it? आगे चलें। ओके, इसको रफ कर देते हैं। And the next is effect of catalyst। Yes, effect number 3, we are studying about effect of catalyst। catalyst का क्या इफेक्ट पड़ता है। so to study the effect of catalyst we can see a graph। छोटा सा ग्राफ देखते हैं और एक डायग्राम देखते हैं। with the help of diagram we will know how catalyst affects the rate of reaction। okay, so here we have, okay, this is the energy axis, energy of reactant, and this is the axis which shows the progress of reaction। रिएक्शन की प्रोग्रेस को शो कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में रिएक्शन बढ़ रही है और एनर्जी क्या चेंज होगी वो देखेंगे हम। सो सपोज वी हैव रिएक्टेंट A plus B, okay, and it changes into C plus B। so C plus B is the product, it is a product
and they are reactant. ठीक है, so here you can see the energy level. आप यहाँ पर एनर्जी देख सकते हैं, रिएक्टेंट की एनर्जी को ये शो कर रहा है. दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो यहाँ पर है, यहाँ तक है. दिस इज द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो वी नो दैट वेन एवर देयर इज अ रिएक्शन, जब रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट कैन नॉट डायरेक्टली चेंज इनटू प्रोडक्ट. डायरेक्टली चेंज नहीं होता. बिफोर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट द रिएक्टेंट फॉर्म अ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. रिएक्टेंट जो है वो एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है. दैट इज, इसको ऐसे कर लें ए बी बी सी, और इसको कर लें ए बी प्लस सी. ठीक है, ये प्रोडक्ट हो जाएगा सब कुछ. तो आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं ए बी एंड सी. दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. This is activated complex. So whenever activated complex is formed, and just after that, instantly it changes into product. क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है. हमें एनर्जी की जरूरत कहां पड़ेगी? आपको रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए एनर्जी चाहिए. यू कैन सी द एनर्जी ग्राफ इज इंक्रीजिंग, या एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से. बाकी नीचे आने के लिए तो हमें एनर्जी चाहिए ही नहीं. इट विल रिलीज द एनर्जी. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना. ये जो मैं रिएक्शन, ये मैंने जो ग्राफ बनाया है, ये जो है इट इज विदाउट कैटलिस्ट. ठीक है, यहां मैंने कैटलिस्ट का यूज नहीं किया है, बिना कैटलिस्ट के मैंने इसको शो किया है. नाउ इफ आई यूज द कैटलिस्ट तो क्या होगा? उससे पहले ये और समझ लेना कि यहां एक एक्टिवेशन एनर्जी और होती है, यानी इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा. उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय EA. ओके, एंड EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी. लेट मी राइट इट हियर. इट इज EA इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट. बिना कैटलिस्ट के. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ कैटलिस्ट का यूज करते हैं, सो दैट वी कैन नो हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट. तो अब मैं कैटलिस्ट का यूज करूंगा. सो व्हाट हैपन, अगर कैटलिस्ट का यूज करता हूं तो कैटलिस्ट विल प्रोवाइड ए ऑल्टरनेट पाथ ऑफ द रिएक्शन. रिएक्शन के लिए इसने एक ऑल्टरनेट पाथ अवेलेबल करा दिया है. एंड नाउ हियर इट विल फॉर्म ए एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी भी कम हो जाएगी, आप देख सकते हैं. ठीक है, और ये पाथ पहले से छोटा है. और इफ आई काउंट द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर इट, और अगर इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी काउंट करता हूं, दैट इज EA डैश. दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट. ठीक है, कैटलिस्ट के साथ एक्टिवेशन एनर्जी. सो हियर यू कैन कंक्लूड, यहां एक सिंपल सा कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि व्हेनेवर वी आर यूजिंग कैटलिस्ट, जब हम कैटलिस्ट को यूज में ले रहे हैं, तो यू कैन सी द एक्टिवेशन एनर्जी हैज डिक्रीज. जब मैंने इसको यूज में लिया है तो देखो इतनी सी एक्टिवेशन एनर्जी है कैटलिस्ट के साथ. एंड विदाउट कैटलिस्ट द एक्टिवेशन एनर्जी इज सो मच, बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी. सो दैट मीन्स कि अब कैटलिस्ट का रोल क्या हुआ? व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट? कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. सो वी कैन राइट कैटलिस्ट decreases the activation energy of reaction. ठीक है, ये रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है. तो एक्टिवेशन एनर्जी का क्या रोल है? तो ध्यान रखना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी. अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी फास्ट होगी, और एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी. तो इसका मतलब कैटलिस्ट ने अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया है, तो ऑब्वियसली अगर एक्टिवेशन एनर्जी घटती है, एक्टिवेशन एनर्जी अगर डिक्रीज होती है, इट मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन वो इंक्रीज हो जाएगी. दिस इज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन अ रिएक्शन. ये कैटलिस्ट का किसी भी रिएक्शन में रोल है. तो रिमेंबर दिस, इसको याद रखना है अच्छी तरह से
कैटलिस्ट और कुछ नहीं करता है, रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, एंड ड्यू टू द डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ओके। तो यहां पर आप इसको देख सकते हैं कैसे हुआ है, जैसे ई ए एंड ई ए डैश, दो तरह की आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है। दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर कैटलिस्ट एंड दिस इज विदाउट कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट के साथ है एक्टिवेशन एनर्जी वो कम है। ठीक है, ठीक है, दिस इज लेस, सो दैट्स व्हाई एनर्जी जो है वो फटाफट हो जाएगी एंड रिएक्शन फटाफट हो जाएगी। ओके, इसको रफ कर दें। कम टू द नेक्स्ट। Okay, the next factor which affects the rate of reaction is, we have studied the temperature, catalyst, and the concentration, and the next factor is the nature of medium. Number 4, nature of medium. What is the role of medium in a reaction? Actually, we have studied that some of the reactions take place in polar medium, some of the reactions takes place in non-polar medium. So we should know that for ionic reaction, ionic reactions are fast in polar medium. Polar medium से मेरा मतलब है H2O. Suppose H2O is a polar medium. So if we are carrying out any ionic reaction, so it can be fast in polar medium. We can take the example. Suppose we have NaCl, aqueous. We have AgNO3. This is also aqueous. So समझना इस चीज को। देखो, मैंने aqueous NaCl का सॉल्यूशन दिया है because NaCl is a ionic compound. It has positive negative ion. AgCl is also ionic compound. So first what I will do, I will dissolve these NaCl in water. I will dissolve AgNO3 into water because both are ionic compounds, and first I will prepare their solution, then I will react with each other. I will react them with each other. So they will form NaNO3 and AgCl. AgCl is the PPT, white PPT of the compound. So this reaction becomes easier when we use aqueous solution. Aqueous means water, because water is a polar medium. तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आयनिक रिएक्शंस है, क्योंकि आयन है यहाँ पर, इसलिए तो जो आयनिक रिएक्शंस होती है दे टेक्स प्लेस फास्टली इन पोलर मीडियम। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जो कोवेलेंट कंपाउंड रिएक्ट स्लोली इन पोलर मीडियम। तो अगर आपके पास कोई कोवेलेंट कंपाउंड है और आप उसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो आयनिक मीडियम में वो रिएक्शन स्लो हो जाती है। ठीक है, और इसका अपोजिट भी कर सकते हैं आप, कि जैसे अगर आप आयनिक रिएक्शन को आप ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं विच आर नॉन पोलर। ठीक है, so you can write ionic reactions are slow in polar medium, sorry, non-polar medium। इसी रिएक्शन को अगर आप नॉन पोलर मीडियम, जैसे आप बेंजीन में कराते हैं, C6H6 में कराते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कराते हैं। ठीक है, तो दीज आर द नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो इफ यू परफॉर्म आयनिक रिएक्शन, ये सेम रिएक्शन अगर आप बेंजीन में कराएं, ठीक है, बेंजीन में डिसॉल्व करके कराएं या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व करके कराएं, तो दिस रिएक्शन विल नॉट ऑकर, होगी नहीं ये रिएक्शन, बिकॉज आयनिक रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्टली इन पोलर मीडियम। तो ये चीज ध्यान रखें आप। और कोवेलेंट कंपाउंड की जो रिएक्शंस होती है दे टेक्स प्लेस इजीली इन नॉन पोलर मीडियम मोस्टली। और यही रीजन है, आपने देखा होगा कि मोस्टली जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो वहां आपने देखा होगा कि जो सॉल्वेंट होता है वो आप नॉन पोलर यूज में लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल फ्रॉम हेलोजन कंपाउंड, जो आपने चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर में आपने पढ़ा था देयर वाज अ रिएक्शन इन विच this is ethene, okay, and you react the ethene with Br2, ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं, and you take the कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट। इसको सॉल्वेंट की तरह काम में ले रहा हूं कार्बन टेट्राक्लोराइड को, बिकॉज दे आर कोवेलेंट कंपाउंड। ये जो दोनों कंपाउंड्स है दे आर कोवेलेंट कंपाउंड, एंड क्या बनाते हैं, दे CH2Br एंड CH2Br,
ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहां पर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड जो काम में लिया है वो नॉन पोलर है, क्योंकि हमारे पास जो कंपाउंड्स है दे आर कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, आयनिक रिएक्शन टेक प्लेस फास्टली इन पोलर मीडियम एंड नॉन आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड रिएक्शन टेक प्लेस फास्टली इन नॉन पोलर मीडियम। तो मीडियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यू शुड नो इट, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज sunlight, that is sunlight. Factor number 5, sunlight. What is the role of sunlight in rate of reaction? So sunlight does not play a very vital role in all the reactions. It plays important role in those reactions which are photochemical reaction. So आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं कि rate of chemical reaction is directly proportional to sunlight, intensity of sunlight or presence of sunlight. अगर आपके पास में सनलाइट है, अगर आप रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, मोस्टली फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ लाइट यानी लाइट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। If we take H2 and Cl2, okay, and they form 2HCl. So this reaction takes place in presence of light. In absence of light, this reaction will be very slow. And if you perform this reaction in presence of light, the rate of reaction will increase. So rate of reaction जो है वो क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। So remember this, the reactions which are photochemical, their intensity or their speed increases in presence of light. And the next factor, that is surface area, number 6, surface area of reactants का surface area। तो ये भी ध्यान रखें बेटा कि एक्चुअली अगर आपके पास जो रिएक्टेंट्स है, if they have greater surface area, the more number of particle will come into contact with the surface of the reactant. So in that case the rate of reaction will become fast. तो reaction जो है वो fast हो जाएगी। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि rate of reaction is directly proportional to the surface area of reactant। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। और दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन सी द पाउडर्ड फॉर्म ऑफ एनी कंपाउंड इज मोर, दे कैन रिएक्ट मोर इन कंपैरिजन टू द सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, तो अगर पाउडर फॉर्म में आप लेते हैं, माइन्यूटली डिवाइडेड अगर आप कोई रिएक्टेंट लेते हैं तो वो जल्दी रिएक्शन करता है। और इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज वी हैव अ सॉल्ट, ठीक है, NaCl, we have a crystal of salt in a bigger form and we have a powdered form of NaCl. If you try to dissolve the NaCl into water, so you will find that the NaCl which is in powder form will be easily soluble in water, but the NaCl which is in form of a large size of crystal, it will be very difficult to dissolve it. उसको dissolve करना मुश्किल होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ surface area कम हो गया है। जब आप उसको minutely divide करोगे, you divide the particle into small pieces, ठीक है, उसको छोटे छोटे पीसेस में जब आप डिवाइड करेंगे, इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज। तो ध्यान रखना कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होता है तो नेचुरल है कि जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बिकम फास्टर, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो दीज वर द सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये कुछ फैक्टर्स थे जो किसी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इन सभी फैक्टर्स में द इंपोर्टेंट फैक्टर्स आर, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स विच आर ऑफनली आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली ये दो फैक्टर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट
एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जो मैंने अभी बताया आपको, विच यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, जो आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज रेट एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ क्या चीज है। तो लेट्स टॉक अबाउट रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट एक्सप्रेशन एंड रेट लॉ। सो टू अंडरस्टैंड द रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन, पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर के जाऊंगा। आई विल टेक यू टू द फ्लैशबैक ना इन 11th स्टैंडर्ड। तो आपको याद होगा इन 11th स्टैंडर्ड वी स्टडीड द लॉ ऑफ मास एक्शन। हमने एक लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था, ठीक है। एक बार पहले लॉ ऑफ मास एक्शन बताऊंगा, देन वी विल स्टडी दिस बिकॉज दे आर को रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। सो अगर हम मानते हैं सपोज अ रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलो। एक रिएक्शन इस तरह से हो रही है, हम यहां ले लेते हैं सपोज ए मोल्स ऑफ ए एंड बी मोल्स ऑफ बी आर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, okay, so this is a simple reaction, but if I write the rate of reaction according to law of mass action, तो हमने क्या पढ़ा था, according to law of mass action which we studied in 11th class in equilibrium chapter. So rate of reaction is directly proportional to the molar concentration of reactant having exponential power, ठीक है, having some exponential power which are stoichiometric coefficient of the reactant। जो reactant के stoichiometric coefficient है उनको अपन पावर्स की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करता हूं तो वी विल गेट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के a raised to power a and b raised to power b, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, दिस एक्सप्रेशन वी हैव रिटन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने एक्सप्रेशन लिखा है, एंड यहाँ पर k जो है इट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, और कांस्टेंट ही कह दिया अभी तो फिलहाल इसको, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट, इसे हम कांस्टेंट कह रहे हैं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। So it was law of mass action. तो यहाँ एक चीज it is very clear that law of mass action and the rate expression according to law of mass action can be written by seeing balanced chemical reaction। क्योंकि हमने केवल क्या किया, इस केमिकल रिएक्शन को देखा और इस रिएक्शन के बेस पर मैंने इसको लिख दिया। So it is totally theoretical concept, ठीक है। It has nothing to do with the experimental values और experiments, उससे कोई लेना देना नहीं है। If I give you any reaction, you can easily write law of mass action according to it, ठीक है। आप रिएक्शन को देख करके law of mass action लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि यहाँ पर कौन सा रिएक्टेंट रेट को अफेक्ट कर रहा है, कौन सा रिएक्टेंट नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने दोनों ए और बी को दोनों को ही लिखा है, और दोनों की जो एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं उनको मैंने मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, आई हैव रिटन देम इन एक्सपोनेंशियल पावर, ठीक है। तो टोटली थियोरेटिकल है, बट अगर मैं इसको लिखता हूं सपोज अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखता हूं, तो एक्चुअली रेट लॉ जो होता है इट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं। हम लोग क्या करते हैं कि इस रेट लॉ को लिखते हैं एक्सपेरिमेंट करके। पहले हम यहाँ पर एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे रिएक्टेंट ए और बी को हम कंटेनर में ले रहे हैं, ए की कंसंट्रेशन को डबल किया मैंने, ठीक है, फिर देखा रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या इफेक्ट आ रहा है, फिर मैंने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, फिर देखा क्या इफेक्ट आ रहा है, फिर उसको मैंने 4 टाइम इंक्रीज किया, 5 टाइम इंक्रीज किया, मतलब इस तरह आई परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट विद द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, इनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और आई फाउंड दैट these stoichiometric coefficients cannot express the rate law, वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो मैंने एक इसके लिए अलग से एक इक्वेशन बनाई, एंड दैट इक्वेशन इज रेट इक्वल्स टू के a raised to power x and b raised to power y।
सो आई हैव मेड अ लिटिल चेंज हियर, मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया है कि मैंने यहाँ a और b की जगह x और y को यूज में ले लिया है। आई हैव यूज्ड x एंड y इन प्लेस ऑफ a एंड b। इट मीन्स अब ये x और y और a और b में क्या रिलेशन है कि x इक्वल्स टू y, सॉरी a में इक्वल्स टू x और a में नॉट इक्वल्स टू x, b में इक्वल्स टू y और b में नॉट इक्वल्स टू y। तो यहां मैंने लिखा है कि अब ये जो पावर्स है ना बेटा a, ये इस x के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सिमिलरली b जो है वो y के इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हाँ, अगर ये इक्वल हो तो इट विल बी मेयर अ कोइंसिडेंस। ये एक कोइंसिडेंस होगा कि हमारे पास जो रेट लॉ है वो लॉ ऑफ मास एक्शन के बराबर आ रहा है या सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें, यस बोलिए, अभी मैं कंप्लीट नहीं किया बेटा, मैंने क्या कहा, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, एक बार मैं कंप्लीट कर लूं, हाँ उसके बाद मैं बता दूंगा। बिल्कुल नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा बेटा एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, है ना। लेट मी फिनिश फर्स्ट। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो आपको इसमें जो दिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने अगर रेट लॉ लिख दिया है तो वो एक कोइंसिडेंस होता है। बट मोस्टली ऐसा होता है कि ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल इन विच यू कैन सी बोथ आर सेम, जिसके लिए दोनों चीजें आपको सेम देखने को मिलेंगी। ओके, सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ वन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं यहां पर। ओके ओके, सो वी हैव अ रिएक्शन, सपोज यहां एक रिएक्शन ले रहा हूं जिसमें आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ, यस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम नाइट्राइट वी है, एंड इट चेंजेस इनटू नाइट्रोजन ऑन हीटिंग एंड देन 2H2, इसमें कन्वर्ट हो रहा है ऑन हीटिंग, अगर मैं इसको गर्म करता हूं तो। अब इस रिएक्शन के लिए अगर मैं देखता हूं कि मुझे क्या लिखना है, इसका रेट, वो लॉ ऑफ मास एक्शन लिखना है। सो लॉ ऑफ मास एक्शन कैन बी रिटर्न एज रेट इक्वल्स टू K एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट NO3। तो यहां इसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है मेरे पास तो मैंने यहां पर 1 ही लिखा है। बट सेम रिएक्शन, इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखता हूं, दिस इज द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा है हमने, ठीक है। और इसी के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखता हूं, रेट लॉ, सो रेट लॉ में क्या होगा, रेट इक्वल्स टू K एंड NH4NO3। तो यहां पर इस रिएक्शन में मैं देख रहा हूं कि आपके पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा है उसमें भी मेरे पास एक ही रिएक्टेंट है, और मैंने जो लॉ ऑफ वो रेट लॉ लिखा है जो एक्सपेरिमेंटली बेस्ड है उसमें भी एक ही रिएक्टेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि ये तो एक कोइंसिडेंस है कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन भी सेम है और रेट लॉ भी सेम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैंने एक लिख दिया है। बट ये जब मैंने एक्सपेरिमेंटली चेक किया तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर जब इस रिएक्शन में अमोनियम नाइट्रेट की कंसंट्रेशन को मैंने डबल किया, ठीक है, जब इसको डबल किया तो मैंने देखा रेट डबल हो गई। इसको मैंने सपोज 4 टाइम्स किया तो रेट भी 4 टाइम्स हो गई। तो यहां पर हमने देखा कि जो रेट थी, रेट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो दैट्स व्हाई हमने कहा कि ये जो रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अभी फर्स्ट ऑर्डर के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, बट अभी ये समझिए आप कि यहाँ पर केवल एक ही रिएक्टेंट रेट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों डिफरेंट हो, जैसे लेट्स सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल वो ले रहा हूं। सपोज वी हैव अ रिएक्शन NH3 चेंजेस इनटू N2 एंड 3H2, ठीक है, 2NH3 गैसियस, और ये रिएक्शन ले रहा हूं मैं। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन देखता हूं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम इसे कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल्स टू K एंड NH3 रेज टू पावर 2, क्योंकि यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स है तो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने 2 लिख दिया है, ठीक है। लेकिन अब सेम रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट लॉ लिखता हूं, रेट लॉ जो मैंने कहा किस पर डिपेंड करता है, जो डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पर। तो आपने एक्सपेरिमेंट करके देखा, आपने अमोनिया की कंसंट्रेशन को डबल किया,
then you try to find what is the effect on the rate of reaction. So you found that there is no effect on the rate of reaction when you double the concentration of ammonia. जब आप अमोनिया की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो इसलिए मैंने इसकी पावर को क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। तो जीरो पावर, क्योंकि अगर आप अमोनिया की पावर जीरो लिखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी, और उसका मतलब ये हो जाएगा कि रेट जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन के, कि वो केवल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा मैंने अभी कहा आपको कि किसी भी रिएक्शन को देख करके जो आप इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, रेट इक्वेशन एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, दैट इज ओनली लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वो थ्योरेटिकल है कंप्लीटली। लेकिन अगर उसका आप कंसंट्रेशन को चेंज करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप उसका एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, वो इक्वेशन इस लॉ ऑफ मास एक्शन के सिमिलर भी हो सकती है, जैसे यहां पर सिमिलर थी दोनों में, ठीक है, इन बोथ द केस इट वाज सिमिलर, बट इट मे आल्सो बी डिफरेंट, लेकिन वो अलग भी हो सकती है, ठीक है। बट ध्यान रखें जो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होती है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड, उसको हमेशा क्या कहते हैं, दैट इज लो रेट लॉ, ठीक है, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड रेट लॉ, उसको हम रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये दोनों में डिफरेंस है। रेट लॉ इज टोटली डिपेंड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, बट लॉ ऑफ मास एक्शन टोटली थ्योरेटिकल, वो केवल टोटली थ्योरेटिकल होता है। बाकी इसके बारे में अपन और डिटेल में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। आज भी हमारी एक क्लास और है, ठीक है बेटा।